أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، تمام قسمت کے حمد ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ نے ساری تعریفیں ہیں جو رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، ستار ہے. اور اس کے آپ سے میرے آقا جو یہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہے. صلی اللہ علی محمد وسلم. بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور وہ آیت ہمارے سلسلہ درس کی اگلی کڑی یعنی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 جو کہ پہلے پارے کا سورہ ہے، اس کی رکو نمبر 13 کی یہ 2 نمبر کی آیت ہے، دوسرے نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلے کے درس میں ہم نے کیونکہ رکو نمبر 13 کی پہلی آیت نمبر 104 کا کافی تفصیلی ہم نے اس کا درس، اس کی تشریح، اس کی تفسیر ہم نے سنا. آج آیت نمبر 105 کی میں نے تلاوت کی ہے. ویسے تو آیت نمبر 105 میں جو مواد پایا جاتا ہے، جو مضمون پایا جاتا ہے، وہ مضمون اس خاص ربط آیت نمبر 104 سے تو نہیں رکھتا. البتہ جو سورہ بقرہ میں جو مضمون بنو اسرائیل کے تعلق سے چلا آ رہا ہے، اس مضمون پر ضرور روشنی ڈالتا ہے. اس مضمون پر کافی حد تک اسی تسلسل سے وہی بیان آیت نمبر 105 میں بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. آیت نمبر 105 میں ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے بنو اسرائیل یعنی اہل کتاب کے تعلق سے اور ان کی وہی رذیل خصائل، بری عادتیں اور برے وسائل جو ان کے اندر موجود تھے، انہی کا تذکرہ آیت نمبر 105 میں کرتا ہے. اور کیونکہ آیت نمبر 106 جو ہے وہ چونکہ آیت حالانکہ چھوٹی ہے مگر کافی سیر حاصل بحث اور سیر حاصل تشریح کی حامل ہے، اس لیے میں نے آج صرف آیت نمبر 105 پر درس کا موضوع میں نے بنایا ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 اس کے رکو نمبر 13 کی جو آیت نمبر 105 ہے. آئیے ایک بار اس کی تلاوت آپ کے آگے پھر سے کر دوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. یہ بھی سورہ بقرہ سے آیت نمبر 105 جو کہ رکو نمبر 13 کی 2 نمبر کی آیت ہے، دوسرے نمبر کی آیت ہے. کیونکہ آیت نمبر 104 کا کافی حد تک ہم نے تفصیلاً اس کی تفسیر اس سے پہلے کے درس میں ہم سن چکے ہیں. آیت نمبر 105 میں بھی ایک ایسا ہی موضوع اور مضمون جو
यहूदियों और अहले किताब के बुरे खसाइल और गदीर खसलतों का अल्लाह तबारक तआला ने आयत नंबर 105 में भी जिक्र किया है। और चूंकि आयत नंबर 106 एक बहुत बड़े मौजू से जुड़ी हुई है, इसलिए उसको आयत नंबर 105 में न मिलाते हुए आज सिर्फ 105 पर और आने वाले 10 में आयत नंबर 106 पर, जिसमें नासिख और मनसूख आयतें किसको कहते हैं और क्या वाकई कुरान में कोई आयत मनसूख हो सकती है। यानी बाज़ लोग उसका मतलब और मफ़हूम ये समझते हैं कि वो नाकाबिल अमल होती है, मनसूख का मतलब। तो क्या वाकई कुरान मजीद में कोई आयत नाकाबिल अमल आयत है? तो ये चूंकि मौजू न सिर्फ अकीदे से जुड़ा हुआ है बल्कि मसाइल से भी जुड़ा हुआ है, और बहुत सारे लोग इस आयत का माना और मफ़हूम गलत समझने और गलत लेने की वजह से और इसकी तफसीर गलत जानने की वजह से बहुत सारे लोग इसी एक आयत की वजह से गुमराह भी हुए हैं। और कईयों उम्मत मुहम्मदिया के जहाँ 73 फिरके हैं, कईयों फिरकों में ये बीमारी भी पाई जाती है कि इसी आयत का इस्तेमाल करते हुए, आयत में इसी 6 का जो आने वाले दर्स से है, इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे लोग गुमराही हुए हैं। लिहाजा उस आयत को मैं अगले दर्स के लिए रख रहा हूँ। आज सिर्फ हम आयत नंबर 105 का लफ्ज़ी तर्जुमा, उसकी तशरीह, उसकी तफसीर हम देखते हैं। पिछली आयतों से और पिछले मजमून से क्या इसका रब्त है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आयत नंबर 105, इसमें अल्लाह तबारक तआला कहता है, मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वला मुश्रिकीन। यवद्दु का मतलब है चाहना, चाहत करना। मा यवद्दु यानी नहीं चाहेंगे। कौन लोग? अल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है। अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि जिन्होंने कुफ्र किया है वो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे। तो काफिर कौन है? मिन अहलिल किताब, चाहे वो कुफ्र करने वाले काफिर अहले किताब में से हो। यहाँ पर अल्लाह तबारक तआला अहले किताब में से बाज लोगों को काफिर कह रहा है। इसका मतलब बाज अहले किताब मुस्लिम भी हो सकते हैं क्या? बाज अहले किताब ईमान वाली भी हो सकते हैं क्या? ये सवाल उठता है, क्योंकि आयत नंबर 105 में भी इसी किस्म का अंदाज अल्लाह ताला आयत 105 और 102, 103 में भी अल्लाह ने इसी किस्म का अंदाज अल्लाह ने इस्तेमाल किया और कहा कि बाज अहले किताब ऐसा अकीदा रखते हैं, बाज अहले किताब इस तरह का मजाक करते हैं नबी के साथ, बाज अहले किताब क्या कहते हैं, नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। और जैसा कि आयत नंबर 104 में अल्लाह ने कहा कि जो नबी के साथ गुस्ताखाना अमल करे, उनकी शान में गुस्ताखी करे, अल्लाह ने उन्हें काफिर करार दिया। तो हर एक अहले किताब आकर नबी के साथ गुस्ताखाना हरकत नहीं करता था और न दीन के साथ इस्तेजा और मजाक करता, बल्कि बाद लोग आकर करते, तो अल्लाह ने उस अमल की वजह से उनको काफिर करार दिया। उसी तरह यहाँ पर भी एक अकीदा, एक अमल है अहले किताब का, उनके उस अकीदा और अमल की वजह से अल्लाह ताला उन्हें काफिर करार दे रहा है। वरना मजमूई एतबार से हर अहले किताब जो नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाए वो काफिर ही हो सकता है। उसमें हजार नेकियां और अच्छाइयां और अखलाक उसके अंदर मौजूद हो, मगर वो शरई एतबार से काफिर ही है। अल्लाह तबारक जिस एंगल से, जिस जाविये से इन्हें काफिर करार दे रहा है, उनके अकाइद और अमाल को जिक्र करके कह रहा है कि ये अकीदा जो रखेगा वो काफिर है, ये अमल जो करेगा वो काफिर है, इस किस्म की हरकत जो करेगा वो काफिर। अमल के एतबार से उन पर कुफ्र का फतवा, कुफ्र का हुक्म उन पर लग रहा है। वैसे मजमूई एतबार से हर अहले किताब, यानी हर यहूदी और हर ईसाई काफिर ही है, क्योंकि उसकी बुनियादी अकाइद में से ये अकीदा है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाता, तो आप सल्लम को आखिर नबी नहीं मानता। इस मजबूरी हुक्म के एतबार, क्योंकि वो अमल हम जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि इस दुनिया का हर जीवित चीजें कहते हैं, और हर क्रिश्चियन, हर ईसाई ये अकीदा नहीं रखता कि सल्लम आखिर नबी और उन पर ईमान लाना जरूरी है, नहीं रखता, इस एतबार से वो काफिर ही है। अल्लाह तबारक तआला जिन एतबार से अहले किताब को यहाँ काफिर करार दे रहा है, वो उनके इसी
पर्टिकुलर मखसूस अकीदे और मखसूस अमल का जिक्र करके अल्लाह कहता है कि ऐसा अकीदा ऐसा अमल जो रखेगा वो काफिर। इसलिए अल्लाह ताला ने मिन अहली किताब जो कहा, वो अकीदा वो अमल जो रखेगा अहले किताब में से बिलखुसूस वो काफिर है ही। और मजमू एतबार से हर अहले किताब और हर मुशरिक काफिर है, मगर जिस अकीदे और अमल का इस आयत में जिक्र है, ये अकीदा और ये अमल कोई अहले किताब रखे, अहले किताब में से अगर कोई अहले किताब रखे तो वो बिलखुसूस इस अमल की वजह से वो काफिर हो जाता है, इस अकीदे की वजह से वो काफिर हो जाता है। तो मिन अहलिल किताब का माना मुफस्सिर हमको समझ में आएगा कि मिन का मतलब ये नहीं कि बाज़ अहले किताब ही सिर्फ काफिर है, बाकी सब मोमिन और मुसलमान है, ऐसा मतलब इसका हरगिज़ नहीं है। मा यवद्दुल लज़ीना कफरू, यानी नहीं चाहते वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है, यानी जो काफिर है, मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से, अहले किताब में से बाज ग्रोह ऐसे हैं, बाज लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते। क्या नहीं चाहते तो आगे आएगा, पर अहले किताब के साथ अल्लाह ने एक और को भी जोड़ लिया, वलल मुशरिकीन, और नहीं मुशरिकीन चाहते हैं कोई चीज, गोया के चाहे मुशरिकियों में चाहे अहले किताब में के बाज लोग हो, वो एक कोई खास चीज है जो नहीं चाहते है। अब यहाँ मुशरिकीन से मुराद मक्का के रहने वाले अहले मक्का ही है इस आयत में, क्योंकि इससे पहले भी अल्लाह ताला ने 101, 102 वगैरह में अहले किताब को मुशरिकीन के साथ जोड़कर ये कहा था कि मुशरिकीन को तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बारे में पता ही नहीं है, अगर तुम पर ईमान न लाए तो वो तो काफिर ही। ये तो अहले किताब वो है जो कि अपनी किताबों में तुम्हारी निशानियां तुम्हारी अलामतें पाते हैं और तुम्हें अपने बच्चों की तरह पहचानते, फिर भी तुम पर ईमान नहीं लाते, तो ये उन काफिरों से भी गए गुजरे हो गए, वो कि ये भी काफिर है वो भी काफिर है, दोनों के दोनों अल्लाह की निगाह में आपको सल्लम पर ईमान न लाने की वजह से दोनों काफिर है। तो अल्लाह ताला उन दोनों काफिरों को एक जगह जमा करके अल्लाह कहता है, मा यवद्दुल लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन, नहीं चाहते अहले किताब, नहीं चाहते काफिरों में से, चाहे वो अहले किताब में से हो चाहे मुशरिकीन में से, युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम, के नाजिल हो ऐ ईमान वालों तुम पर। ईमान वालों का तर्जुमा क्यों कर रहा हूँ, लफ्ज अलैकुम आ गया यहाँ पे, हालांकि मकसूद और इशारा सिर्फ आपको सल्लम ही की तरफ है, यानी ऐ वसल्लम आपके ऊपर कोई चीज अच्छी नाजिल हो, मकसूद ये है। हालांकि पर आप वसल्लम से मुराद सारे उम्मत मोहम्मदिया, सारे मुसलमान, बिलखुसूस सारे सहाबा आप के जमाने में जो मौजूद थे, उनकी तरफ अलैकुम का इशारा और मरजा है। आई युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम, अहले किताब में से और मुशरिकीन में से जो भी काफिर है वो ये नहीं चाहते कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर और आपके मानने वाले बिलखुसूस सहाबा पर नाजिल है कोई अच्छाई कोई भलाई तुम्हारे रब की तरफ से, वो ऐसा नहीं चाहते। ये हो गया इस आयत का माना मफहूम और तर्जुमा। ये काफिर लोग जो अहले किताब में से और मुशरिकों में से, वो ये नहीं चाहते कि नबी पर और नबी के मानने वाले बिलखुसूस सहाबा पर अल्लाह की तरफ से कोई अच्छाई, कोई इनाम, कोई एहसान नाजिल हो, अच्छाई हो, कोई फतेह हासिल हो, कोई खुशी हासिल हो, वो ऐसा नहीं चाहते। अगर ऐसा हो तो इनको थोड़ा में तकलीफ होती है कि मुसलमानों की अच्छी चीज कैसे होगी, मुसलमान खुश क्यों है, मुसलमानों को फतेह क्यों हुई, इनको थोड़े में तकलीफ होती है। ये नहीं चाहते कि मुसलमानों को कोई अच्छाई और भलाई मिले। ये आम मफहूम है इस आयत का, तो आम तौर पर हर कुरान का पढ़ने वाला इस आयत पर आने के बाद यही माना मफहूम मिलता है। मगर इस आयत में जिस माने और मफहूम की तरफ इशारा है वो ये दो चीजें हैं, एक कामिल नबी, कामिल दीन, ये दो चीजें हैं जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई। युनज़्ज़ल का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया, ये दो चीजें अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई। अब ये अल्लाह जो है ये दो चीजें दुनिया में किसी को भी दे सकता है। कामिल नबी किसी को भी बना सकता है, अल्लाह को कोई रोक नहीं सकता, अल्लाह पर कोई क़ुयूद और पाबंदियां नहीं है। और कामिल दीन अल्लाह ताला किसी भी ऊपर गुरोह को दे सकता है, इसकी भी कोई कैद नहीं है। ये किसी की ख्वाहिश और मर्जी पर नहीं है कि कामिल नबी हमारे हिस्से में आ जाए
क्या कामिल दिन हमारे हिस्से में आ जाए और गुमराही और फला किसी और के, ये किसी के ख्वाहिश और मर्जी और मंशा पर ये मुनसिब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात पर डिपेंड है। अल्लाह ताला कहता है वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है, आपकी शान में गुस्ताखी करते हैं, आपके साथ क्या कहते हैं गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, आपको बद्दुआ देते हैं, कहते हैं कि आप पर मौत वाक़या हो, और आपके ताल्लुक से क्या कहते हैं कि तुम तो हमारे चरवाए हो, तुम तो बेवकूफ हो, इस तरह कहकर दीन का मजाक उड़ाते हैं। और जब तुम्हारे पास आकर मिलते हैं तो कहते हैं हम तो ईमान वाले हैं, ताकि तुम्हारा दिल जीत ले, तुम्हारे दरमियान अपनी एक जगह बना ले। जैसे तुम्हारे पास से निकल जाते हैं और अपने खुद के शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं हम तो उनके साथ ठट्टा और मजाक कर रहे थे, हम तो तुम्हारे ही भाई तुम्हारे साथी है। इस किस्म के अकायद और ईमान रखने वाले ये लोग काफिर है, चाहे वो अहले किताब में हो चाहे मुश्रिक में हो, इनको ये दो चीजें ऐ नबी मुकर्रम, इनको ये दो चीजें हजम नहीं हुई, पसंद नहीं आई कि कामिल और परफेक्ट नबी ये मक्का के रहने वालों में क्यों पैदा हुआ और परफेक्ट और कामिल दीन इस जाहिल कौम को क्यों मिला। मक्का के जो रहने वाले लोग थे उनकी निगाह बड़े जाहिल अंदर किस्म के थे। ये यहूदी लोग अपने आप को बड़े पढ़े लिखे और बहुत बड़े बड़े शौरा और उदबा अपने आप को समझते थे, और इनको तो गिनते ही नहीं थे बिल्कुल। यहाँ तक के मदीना के रहने वालों को तक ये यहूदी लोग बिल्कुल गिनते नहीं थे, बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं देते थे, इनको बहुत ही गंवार। इसीलिए बहुत सी जगह पर मदीना के हो चाहे मक्का की हो, यहूदियों की ताबेदारी अलग इख्तियार कर, जहाँ कोई मसला इनका जैसा भी दीन था, अगर कोई बात समझ में नहीं आती, अहादीस में और रिवायत में बहुत सारी मिसालें मिलती है, तो इनकी इत्तेबा कर लेते थे यहूदियों की। अरे वो तो अहले किताब है, बहरहाल उनके पास मालूमात ज्यादा है, नॉलेज ज्यादा है, उनकी इत्तेबा कर लिया करते थे। तो वैसे भी ये पस्त कौम थी यहूदियों की निगाह में। तो यहूदियों में से बाज लोग ये भी सोचते थे कि हम इस नबी को हर एंगल से हर एतबार से हमने टेस्ट करके देख लिया, परख कर देख लिया, कहीं ये नबी फेल होता हुआ नजर नहीं आता। हमने जो सवाल किया उसका जवाब दिया। नबी से पहले के दूसरे हमने देखा कि सवाल किया नबी से और कहा कि ये वो सवाल आता है जिनका जवाब नबी के अलावा कोई नहीं जानता। नबी के अलावा सवाल किया गया, आप 2 मिनट रुक गए, वही नाज़िल हुई, जो जवाब चाहिए था उस सवाल का जवाब वही जवाब दिया, हक्के बक्के रह गए। तो वाकई ये तो नबी के अलावा कोई नहीं जानता। इस शख्स ने भी जवाब दिया कि नबी ही, हर एंगल से टेस्ट करके देख लिया। पहुंचे एक जगह पे सफर में, जंग खैबर के बाद का वाकया है, आप के पास एक तोहफा पेश किया गया, भुना हुआ गोश्त, आपने उठाया खा लिया, जबकि वो पूरी तरह जहर आलूद था। एक यहूदी औरत ने उस गोश्त में जहर मिलाकर आप को खिला दिया, आपने खा लिया, और बाद में पूछा भी क्या तुमने उस गोश्त में जहर नहीं मिलाया था? कहा हाँ मिलाया था। आपको कैसे मालूम हुआ? मैं अल्लाह का नबी हूँ। नहीं, हम यही चेक करना चाहते थे कि अगर तुम नबी हो तो ये जहर का असर तुम पर नहीं होगा, अगर नबी नहीं होगे तो तुम मर जाओगे। दोनों तरीके से तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। अगर तुम नबी होंगे तो तस्दीक हमारी हो जाएगी, नबी नहीं है झूठा शख्स है तो ऐसे बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। नहीं हो जाएगा। आप आखिरी औकात में, आप के आखिरी लम्हात में आप बहुत ज्यादा गले में तकलीफ महसूस करते हैं, पूछते हैं अल्लाह को क्या हो रहा है, तो कहते हैं मैं उस जहर की तकलीफ को महसूस कर रहा हूँ जो उस वक्त मुझे अल्लाह ने नहीं दी, मगर आज भी ये इंसान होने की वजह है। और लोग कह सकते हैं कि वो इंसान से तो जहर का असर क्यों नहीं हुआ, कभी मर जाना चाहिए था। वो मौजिज़ा था, अल्लाह ने उस जहर को उस वक्त असर नहीं दिया, मगर जहर है, दुनिया आलम असबाब है, जो चीज में असर मौजूद होगा वो जरूर काम कर जाएगी। जैसा कि आप सल्लम को मौत के करीब लम्हात में उसकी शिद्दत महसूस हुई, आप वो दर्द महसूस किया। तो इस तरीके से भी ये नहीं, यहूदी और मुश्रिक ने आप सल्लम को टेस्ट करके देख लिया और हर एंगल से परफेक्ट हस्ती निकलती आई। यही वजह है, अल्लाह कसम खाकर मैं बार बार कहता रहता हूँ कि अगर इस दुनिया में परफेक्ट नाम की अगर कोई फ्रेम हो, फ्रेम जिसमें फोटो दिखाई जा सकती है परफेक्ट नाम की, तो उसमें एक ही एक तस्वीर फिट हो सकती है, वो है आपके मेरे आका मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके अलावा दुनिया की कोई ऐसी फोटो नहीं जो आइडियल हो,
जिसकी इत्तेबा इंसान करे, जिसके जैसे सूरत बनाने की कोशिश करे, जिसके जैसे हाथ पे बनाने की कोशिश करे, जिसके जैसे चाल वाल बनाने की कोशिश करे, सिर्फ एक ही एक आइडल तस्वीर हो सकती, वो प्यारा रसूल। और दीन भी इतना कामिल कि कोई मसला ऐसा नहीं था कि आप उनसे पूछा जाता आप उसका जवाब न देते हैं। यहाँ तक कि बाद जगह तो इन अहले किताब और मुशरिकीन ने ऐसे ऐसे बेढंगे और भोंदे सवालात किए कि आप ने उसका भी जवाब दिया। यहाँ तक कि आप एक मरतबा एक तो खुतबे के लिए खड़े होते ताकि कयामत की सारी निशानियां बतलाए, चिढ़ गए थे आप एक किसी एक शख्स के खास अमल जो चिढ़ गए थे। आप का पूछो आज मुझसे जो पूछना है। एक शख्स उठा अचानक और कहा कि आप जरा बताइए मेरा बाप कौन है, तो बता दिया, नाम बता दिया, फिर वो उसके बाप नहीं था। परेशान हो गया। मर्द हमने जिसके पास जाके तहकीक की तो वाकई मामला उल्टा ही निकला। जो सवाल किया गया उसका जवाब दिया गया। यहाँ तक के एक बार आप ज़ोहर के बाद जो निशाने बताने शुरू की तो असर के बाद मगरिब करीब ईशा तक आप सारे क़यामत की निशाने आपको मतलब दीनी मसाइल के एतबार से शुरू से लेकर आखिर तक, जीरो से लेकर आखिर तक, ए से लेकर जड तक, अलिफ से लेकर या तक, जितने इंसानी जरूरियात के मसाइल हो सकते हैं सब कुछ सिखा दिया। यहाँ तक के पाखाना पेशाब के सारे मसाइल, नहाने धोने के सारे मसाइल आपको बता दे। शरीय एतबार से कामिल दीन। अब इन अहले किताब को मुश्किल को हसद इस बात की होती थी कि ये कामिल दीन इनको क्यों मिला, कामिल नबी किस कमतर कौम को कैसे मिला, इस बात की हसद होती थी। और ये चाहते थे कि ये चीज इनको न मिले। जैसे कि अहले किताब के ताल्लुक से जो बहुत बड़ी दुश्मनी इसका अल्लाह ताला जिक्र करता है वो यही थी कि अंबिया तो बनो इसराइल में है, यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में ये नबी कैसे पैदा हो जाए। अगर नबी होना ही था आखिरी नबी, परफेक्ट नबी, कामिल नबी, तो बनो इसराइल में होना चाहिए था। ये बनो इस्माइल में से कैसे हो गया। इसी एक हसद और जलन और बुग़्ज़ और अनाज की वजह से आप का इनकार कर दिया। अल्लाह कहता है मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू, नहीं चाहते काफिर लोग, चाहे वो अहले किताब में से हो चाहे मुशरिकीन में से हो, कि आपके ऊपर कोई भलाई नाजिल हो तुम्हारे रब की तरफ से, यानी कामिल नबी और कामिल दीन अल्लाह की तरफ से किसी को मिले, ये दोनों लोग नहीं चाहते। अब अल्लाह इसका जवाब देता है क्यों अल्लाह ताला किसी को भी कामिल नबी बना सकता और किसी को भी कामिल दीन दे सकता बगैर किसी शर्त और कुयूद के। क्यों अल्लाह का जवाब देता है वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। बड़ा ही प्यारा टुकड़ा है आयत नंबर 109 का। ये खास तौर पर हर 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 मुतकब्बिर शख्स के तकब्बुर को तोड़ने के लिए काफी है। हर मुतकब्बिर घमंडी शख्स के तकब्बुर को तोड़ने के लिए काफी है। हर उस शख्स की बीमारी को खत्म करने के लिए काफी है जो हसद और जलन में मुब्तला हो। क्या है वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, बेशक अल्लाह खास कर देता है अपनी रहमत मन यशा, जिसको चाहे। अपनी रहमत किसको कह रहा है अल्लाह ताला, कामिल नबी कामिल दीन, ये अल्लाह की रहमत है, जिसको चाहे इसमें खास कर ले, है ना। ऐसा नहीं कि जितने लोग हैं सब कामिल नबी, तो खास कहाँ हुआ। हजारों करोड़ों मखलूकात में से एक शख्स को अल्लाह ने चुना, कहा कि ये मेरा कामिल खातिमुल नबीयीन रहेगा, खातिमुल अंबिया रहेगा। एक शख्स एक खास करना ही हुआ ना। इसी तरह बहुत सारे शरीयत इससे पहले आप की शरीयत से पहले बहुत सारी शरीयतें आकर चली गई, मगर शरीयत मोहम्मद क़यामत तक बाकी रही क्योंकि ये परफेक्ट थी। इससे पहले अगर हम मुआवजा करें कि मूसा अलैहिस्सलाम की जो शरीयत थी वो इन्हीं की बुराइयों, इनकी शरारतों, इनकी लानत और फटकार वाली ऐमाल की वजह से वो चीज जो हलाल थी उन पर हराम कर दी गई थी, वही शरीयत उन पर लागू थी, वही शरीयत उन पर। जैसा कि बाद मसाइल मैंने बयान किए थे कि अगर शरीयत मुस्लिम के हिसाब से अगर किसी के कपड़े पे कोई गंदगी लग जाती है, चाहे वो इंसान से निकली हुई गंदगी हो या कहीं चलते फिरते कोई गंदगी हो,
तो उसके साफ करने का तरीका क्या था? उतना कपड़ा काट के देना पड़ता। हो गया कि हर अमीर फकीर नजर आता, क्योंकि हर एक के कपड़ों में सेवंद लगे हुए, सुराख है। उनके शरीर में ही मसला था। शरीयत मोहम्मद में मसला है कि सिर्फ उसको धो तो कपड़ा साफ हो जाएगा। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नमाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बैठने के इस्तेमाल कर सकते हैं, ओढ़ने के लिए, इन सब से बढ़कर गए नमाज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी सहूलत शरीयत मोहम्मदिया में। तो ये परफेक्ट दीन भी अल्लाह ने उस उम्मत मोहम्मदिया को दिया। तो अल्लाह अपनी रहमत खास करने के लिए किसी शराइत का अल्लाह ताला मोहताज नहीं है, किसी कैद का अल्लाह ताला मोहताज नहीं है, किसी के जरिए और वसीले का अल्लाह मोहताज नहीं। अल्लाह अपनी मर्जी का मालिक है। मई यशा, यानी अल्लाह जो चाहे, जिसके साथ चाहे वो काम कर गुजरे। अब हसद जलन की बीमारियां जो लोग रखते हैं, उनके लिए इसमें इलाज कैसे है? उनके लिए इसके इलाज ऐसे, अगर अल्लाह ताला एक आमतौर पर तहाजुद में कहते हैं कि ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान। क्यों कहते हैं? क्योंकि बाद ऐसे भी अंगूठा चाप है जो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जिनके पेड़ बड़े बड़े हो गए, काम कुछ नहीं करते, मगर मंथली नहीं डेली की इनकम बहुत ज्यादा है। एक पढ़ा लिखा आदमी MA, MS, BA, BS, MBBS, डॉक्टर, पता नहीं क्या क्या करके भी महीना 10-15 हजार के आगे जाता नहीं। वो सोचता है ये अनपढ़ अंगोड़ा चाप मेरे से ज्यादा कमा रहा है, वो सब कुछ करके भी कुछ नहीं कमा रहा। अल्लाह की रहमत है वो। अल्लाह ने उसे किस्मत लिख दिया था कि ये खूब आयश करके ही मरेगा, लिख दिया अल्लाह। अल्लाह चाह रहा भाई, अल्लाह किसी को खिलाना पिलाना चाहे तो कौन रोक सकता है? इसमें जहां रहमत का जिक्र है, वहीं पर एक और चीज का एक और मनफी पहलू का भी जिक्र करूंगा कि अल्लाह ताला अगर किसी के साथ नुकसान करना चाहे तब भी उसको कोई रोक नहीं सकता। इसमें भी कोई तय शर्त नहीं है कि फला के साथ अल्लाह नुकसान करे, फला के साथ न करे। मैं तो हूं मेरे साथ न करे, फला के साथ करे। इस किस्म की शर्त और कैद भी अल्लाह को नहीं लगा सकते। जैसे बात लोग क्या करते हैं, अगर किसी बुढ़िया का नवा समझा और रख लेता हो तो बुढ़िया हाहाकार करते हुए रोते हुए क्या बदुआ दीजिए, अल्लाह के मैं ही मिली थी कि मेरा नवासा तूने उठा लिया। यानी अल्लाह किसी को बर्बाद करना चाहे तो कोई शर्त और कैद उसमें भी नहीं है। बाद लोग एक्सीडेंट हो जाता, कहता यार इतने सारे लोग थे, हम 2 लोग बाइक पे थे, उसकी टांग में टूटी, मेरी टूटी, मैं ही था क्या? अरे अल्लाह अगर बर्बाद करना चाहे तो अल्लाह के लिए कोई शर्त और कैद नहीं है। उसे अल्लाह रहमत अगर डालना चाहे, रहमत बसाना चाहे, आसान करना चाहे तो भी कोई अल्लाह पर कोई शर्त और कैद नहीं। अल्लाह अपनी मर्जी की मालिक है। अल्लाह के लिए कोई उसूल नहीं है। हाँ, ये दुनिया आलम में असबाब है, सबब की दुनिया है। जो सबब अल्लाह ने रखा हो वैसा ही काम होगा। अगर कभी न हो तो या तो मौजूदा रहेगा या करामत होगी, क्योंकि खर्च की आदत और गैर मामूली होगी। यानी मिसाल के तौर पर जो बार बार देता हूँ चाकू और छुरी की, उसका काम ही है काटना। अगर किसी सब्जी काटने वाले के हाथ में तो सब्जी काटेगी, अगर किसी चोर डाकू उछक के खूनी के हाथ में आएगी तो किसी का मर्डर कर देगी। खुदी का काम है ये। अब यहाँ पर अल्लाह अपनी मर्जी अपना हुक्म क्या देगा? बहुत सारे लोग इस वजह से भी गुमराह है। क्या कहते हैं? अल्लाह बार बार आकर हुक्म देता हो। अगर अल्लाह का हुक्म न हो तो छुरी नहीं चल सकती, अल्लाह का हुक्म न हो तो पानी नहीं डुबा सकता। अरे अल्लाह से बार बार हुक्म नहीं देने वाला, अल्लाह ने इन चीजों को इन्हीं खसाइल के साथ पैदा कर दिया। अब कयामत तक ऐसे ही करने वाली, अगर कभी ना हो तो मौजूदा और करामत है। तो एक आध बार रेयर किसी चीज को कहते हैं, मगर इन रूटीन, इन जनरल सेंस, इन कॉमन सेंस वो वही काम करेंगे जिस सिफात के साथ वो चीज पैदा की गई। इंसान को 2 चीजों पर तवक्कल करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। हदीस के पढ़ने के बाद एक जो बात मालूम होती है वो ये कि इंसान को 2 चीज पर तवक्कल भरोसा करना चाहिए। एक तो है अल्लाह की जात, एक तो है अल्लाह की जात, उसके साथ है अल्लाह की लिखी हुई तकदीर जो कि अल्लाह की मर्जी और मंशा है। दोनों पर भरोसा होना। अल्लाह पर तवक्कल इस तरह के खूब भागे, खूब मेहनत करे और साथ अल्लाह से मदद मांगे और अपनी मंजिल को पाले, अपने रिजल्ट को, अपने अंजाम को पाले, अल्लाह की शुक्र अदा करे। अगर कभी सारी मेहनत में ऐसा मामला न हो और रिजल्ट और अंजाम हाथ में न आए तो आप सब्र करें और तकदीर पर तवक्कल करें, भरोसा करें कि अल्लाह ने लिखा था, इसलिए इतनी सारी मेहनत, सारी दुआओं के बाद नहीं मिली। दोनों चीजों पर तवक्कल और भरोसा इंसान का हो तो बड़े इत्मीनान के साथ दुनिया की जिंदगी गुजर जाएगी और इसी सब्र की वजह से अल्लाह ताला जन्नत मिलेगा। क्योंकि जन्नत एक दूसरा नाम है सब्र का।
सारी कोशिशें, सारी मेहनतें और दुआ करने के बाद अगर कोई चीज ना मिले और इंसान ये कहे कि अल्लाह ने लिखा था मेरी तकदीर में और सब्र करे, तो इस सब्र के लिए अल्लाह ताला जन्नत भी देता है। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह अपनी रहमत को खास कर देता है जिसके लिए चाहे। वल्लाहु जुल फज़्ल अज़ीम, अल्लाह ताला उम्मीद जगा रहा अपने ईमान वालों के अंदर। आखिरी टुकड़े में आयत नंबर 105 के वल्लाहु जुल फज़्ल अज़ीम, बेशक अल्लाह बहुत बड़े फज़ल का, बहुत अजीम फज़ल का मालिक है। मतलब फज़ल, एहसान, इनाम बहुत ज्यादा अल्लाह के पास है। अल्लाह कहता है कोई लेने वाला ही नहीं, कोई मांगने वाला नहीं, कोई मुझसे आकर ले और इस्तेमाल करे और खूब दिए, ये मुझे नहीं मिलता। हम तो माइल व करम में कोई साइल ही नहीं। अल्लाह इकबाल ने अपने शेर में क्या कहते हैं दूसरे में, हम तो माइल व करम में कोई साइल ही नहीं, हम तो इतना देना चाहते हैं तो कोई अफसोस भी मांगने वाला ही नहीं। हमारे पास इतना पड़ा हुआ, इतना पड़ा हुआ है कि कोई लेने वाला ही नहीं। जैसा कि हदीस में आता है बाद में कि अगर अल्लाह ताला सारे इंसान, सारे जिनों को, सारे आदम सलाम से लेकर जब से दुनिया में एक जगह खड़ा करे, तो सबको सबकी ख्वाहिशात के मुताबिक सबको दे दे, जितना मांगा उतना, तब भी अल्लाह के फजल में से, अल्लाह के खजाने में से उतना ही कम होगा जितना किसी समंदर में सुई डुबो दी जाए और देखा जाए कि उस सुई पर कितना पानी लगा हुआ है। वल्लाहु जुल फज़ल अज़ीम, अल्लाह बहुत बड़े फजल का मालिक है, देने के लिए तैयार है मगर मांगने वाला नहीं है, उससे लेने वाला नहीं है। यहाँ तक कि मैं ये भी कहता रहता हूँ दुरूस में कि अल्लाह ताला तो वादा करता है कि तुम सही ईमान लाओ, सही अमल करो, मैं तुम्हें दुनिया में भी ऐसे ऐसे वाली जिंदगी दूंगा और आखिरत में भी। बहुत सारे लोग इस बात को न समझने की वजह से भी दीनी एतबार से गुमराही में है, पूरी तरह नहीं मगर इस अकीदे में गुमराह। वो क्या कहते हैं, नहीं भाई आखिरत में कामयाब होना, वो दुनिया की जिंदगी बड़ी परेशान हाल भिखमंगी और फटीचर की जिंदगी गुजरना तो आखिरत में कामयाब नहीं, बहुत गलत बात है। अगर ऐसा होता तो सिर्फ बकरा की इंशाल्लाह आयत आगे आएगी जिसमें अल्लाह ये नहीं कहता कि ईमान वाले तो वो हैं जो ये दुआ करते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, आए हमारा हमें दुनिया में भी भलाई दे और फिर आखिरत हसना, हमें आखिर में भलाई दे, वक़ीना अज़ाब अन्नार, और सबसे बड़ी चीज जो बचने की वो जहन्नम है, जहन्नम के आग से बचा। उससे पहले अल्लाह को काफिरों का जिक्र करते कहता है काफिर वो है जो ये कहते हैं अल्लाह जो कुछ हमें देना है सब दुनिया में दे, आखिरत में कुछ मत दे। अल्लाह कहता है ये एटीट्यूड, ये रवैया मुझे पसंद नहीं है, मांगो मुझसे दीन और दुनिया दोनों मांगो, मैं दोनों दे दूंगा जी भरकर। यहाँ तक सूरह नूर की सूरह नंबर 24 के अंदर अल्लाह ताला कहते हैं चाहे वो मर्द हो या औरत, मैं दोनों को ऐश इशरत वाली जिंदगी दुनिया में दे सकता हूँ, मगर शर्त क्या है, मेरे हिसाब से जीना, मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं कि ऐश और इशरत के लिए इस्लाम के सारे चीजों को लात मार दिया और कहा कि मेरी ख्वाहिश ये करती है, अल्लाह कहेगा अब मैं कुछ नहीं दूंगा, तू मुझे खुश कर, मैं तुझे दुनिया में खुश कर दूंगा और आखिरत में खुश कर दूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत बड़े फजल का मालिक है। तो ये थी सूरह बकरा की आयत नंबर 105। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम नासिक और मनसूख आयतें किसको कहते हैं, क्या आयतों में भी नासिक और मनसूख होती है, क्या हदीसों में भी क्या नासिक और मनसूख होती है, इंशाअल्लाह इन दोनों चीजों को हम समझेंगे। मैं समझता हूँ अगर आयत नंबर 106 सूरह बकरा अगर हम समझ ले, मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ दीन के बहुत ज्यादा अकीदे और अमाल के एतबार से मसल के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे और बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगा इस्लाम की, इस्लाम को देखने का और इस्लाम की निगाह से देखने का दुनिया को और मसाइल को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अगर आयतों और इसके अच्छी तरह हम समझ लें। अल्लाह बिल्कुल मुझे तौफीक दे कि मैं हक बात को ही पढ़ूं, हक बात को ही आप तक पहुंचाऊं, हक बात की ही दावत तबलीग करूं, और अल्लाह आपको भी तौफीक दे कि आपको अल्लाह ताला ने इस बात हक ही सुना है, समझा है। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।